Good morning, students. Today we will start chapter number 4, and the chapter number 4 is materials, metals and non-metals. We all know that anything which occupies space having mass known as an object. So material in this chapter differentiate on the basis of metal and non-metal. We can divide metal on, that is materials in metal and non-metals. First of all, before starting this chapter, I would like to give you some example of metals. Suppose this is a Na is sodium, it is a metal. Potassium is a metal. Calcium is a metal. Magnesium is a metal, Mg. Whereas if you talk about the non-metals, that is carbon, oxygen, sulfur, phosphorus, these are the non-metals. We will try to differentiate metal and non-metal on the basis of physical and chemical property. What is physical property? Physical means how its look, hard, कैसा दिखता है, हार्ड है, टफ है, all these things come under physical. And if you talk about the chemical properties, on chemical properties, how it react with oxygen के साथ कैसे react करेगा, how it react with water, acid, all this come under chemical property. So in this chapter we will try to differentiate metal and non-metal on the basis of physical and chemical properties. Let us start the chapter, and in first paragraph what the things were given we will try to understand each and every line. Okay, you are familiar with numbers of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have given in table 4.1. If you try to see table 4.1, in 4.1 some materials were given, that is iron, coal, sulfur, aluminium, copper. Okay, so we have to differentiate them on their basis of physical properties. Okay, so what is given, appearance and hardness of materials. What we have to do, we have to differentiate on the basis of their appearance, how it's appear, and hardness of materials. Okay, so in next paragraph what the things were given, can you name the material which are metals? Among all these which are metals? Question has been arised. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये चार मटेरियल्स आपने लिए हैं, इन चार में से कौन से मेटल्स हैं? The rest of materials is in 4.1 are non-metals. और कुछ मेटल्स को चूज कर लेने हैं, और चूज करने के बाद जो बचे हुए हैं वो सारे क्या होंगे? आपके नॉन मेटल्स होंगे. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of physical and chemical properties. इस लाइन को इस वर्ड को मार्क कीजिए. हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे मेटल नॉन मेटल पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग कहीं ना कहीं मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. ओके, रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. लस्टर मीन्स वर्ड लस्टर इज हियर यूज्ड, LU हियर. लस्टर मीन्स साइन. चमक कैसा होता है, तो उसके बेसिस पर हम लोग कहीं ना कहीं, और दूसरा क्या है? हार्डनेस. इस बेसिस पर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे मेटल और नॉन मेटल को. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ पे दिया गया है. हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस or an iron article made of iron like a seed or soil and X. कहीं ना कहीं आप ब्लैक स्मिथ के पास गए होंगे जो लोहा का काम करता है, तो कहीं ना कहीं आपका लोहा को
आयरन को, इन सभी चीज़ों को ठोकता है, ठीक है, और उसी से ये सारी चीज़ें बनती हैं। आपका सेट बनता है, आपका सोल बनता है, एक्स बनता है, ये सारी इन्हीं चीज़ों से बनती है, आपके लोहे से बनती है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? जब इसको वो बीट करते रहता है, ठोकते रहता है, तो इस आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं कोई बदलाव आता है। यस, इट चेंज इट्स साइज शेप विदाउट ब्रोकन, बिना टूटे हुए कहीं ना कहीं अपने वो शेप और साइज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? कहीं ना कहीं एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और उसको भी उसी तरीके से आप ठोकने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो भी जैसे लोहा आपका फैल जा रहा है बिना टूटे हुए, वो भी फैलेगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? लेट अस फाइंड आउट। आइए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। नाउ एक्टिविटी 4.1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी 4.1 को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या दिया गया है। टेक ए स्मॉल आयरन नेल्स, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड। 4 चीजें लेनी है। व्हाट द थिंग्स वी हैव टू टेक? वी हैव टू टेक आयरन नेल्स, Fe। दूसरा है आपका कोल is mainly made up of carbons, aluminum, Al, and last pencil lead, that is PV lead। ओके, ये 4 चीज़ें लेनी है और 4 चीज़ों को लेने के बाद आफ्टर टेकिंग दिस 4 थिंग्स व्हाट वी हैव टू डू, बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर। हैमर से क्या करना है, उसको ठोकने की कोशिश करना है। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस। जब आप उसको ठोक रहे होंगे उस क्रम में कहीं ना कहीं आप अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले, इसका ख्याल आपको रखना है। द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, फिर उसके बाद क्या करना है, ट्राई टू हिट हार्ड, उसको हिट करना है हार्ड, हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, एल्युमिनियम को भी करना है, ठोकना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल्स पीस एंड पेंसिल लीड। वैसा ही कहीं ना कहीं आपको कोल के साथ करना है, उसके साथ साथ आपको पेंसिल के लीड के साथ करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। और इनको ठोकने के बाद आप क्या पाते हैं, क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं टेबल 4.2 में आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, इस टेबल को फिलअप कर लेना है। आयरन नेल्स टूटेगा नहीं, स्प्रेड हो जाएगा, ये आपका टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा, ये पेंसिल भी आपका टूट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, जब आप हैमर से इनको ठोकने की कोशिश करेंगे तो एनल रेड टूटेगा नहीं, कोल पीस टूट जाएगा। चेंज इट शेप, क्या कर, चेंज इन शेप, फ्लैटन ब्रेक विदाउट ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो आपका आयरन नेल्स कहीं ना कहीं ये चेंज इट शेप, break into pieces, aluminum wire change its shape, pencil lead breaks into pieces। okay, next let's move to the next page number, that is now we are moving toward the page number 45। in page number 45 what the things were given, we will try to understand। In this, you saw that the shape of the iron nails and the aluminum wire change on beating। कहीं ना कहीं अगर आपने उस एल्युमिनियम वायर को लिया है, किसको लिया है आपने, एल्युमिनियम वायर को लिया है और उसको आपने ठोका है, तो वो कहीं ना कहीं वो अपना शेप को चेंज किया है। If they were beaten harder, this could be changed into sheet। अगर उसको और आप तेजी से ठोकेंगे, हार्डली ठोकेंगे, तो उसका वो क्या हो जाएगा, पतला सा शीट बन जाएगा। You might be familiar with the silver foils used for decorating sweets। जो मिठाई होता है और मिठाई के ऊपर आपका सिल्वर कलर का एक लेयर चढ़ाया गया था ताकि उसको सुंदर देखा जाए, वो क्या होता है, वो आपका सिल्वर फॉइल होता है। क्या होता है, आपका सिल्वर फॉइल होता है। और ये क्या यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, मिठाई को सजाने के लिए यूज किया जाता है।
You must also be familiar with the aluminum foils used for wrapping foods. कहीं ना कहीं आप चाट छोला खाना जाते हैं और उसको जब चाउमीन वगैरह पैक कराते हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक एल्युमिनियम फॉइल होता है, उसमें उसको क्या कहता है, पैक किया जाता है। तो एल्युमिनियम फॉइल हो गया आपका, सिल्वर सीट हो गया, ये सिल्वर फॉइल हो गया, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, सिल्वर फॉइल हो गया। ये पतला एकदम होता है। कि कैसे बना है, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली हैमर किया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटते नहीं हैं। वो पतला से पतला सीट ले लेते हैं, पतला से पतला चदरा का रूप ले लेते हैं। The property of metals by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. What is malleability? Malleability क्या है? Mark these lines. The property of the metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसको ठोकने के बाद लगातार continuous try to beating, continuous beating turns into thin sheet, that is known as malleability. Without breaking, बिना टूटे वो पतला से पतला सीट बन जाते हैं। उसको उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, malleability कहते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और ये जो है मेटल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एस यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी एंड कैन बी कॉल्ड एज मेटल। वही कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि कोल को और पेंसिल को, पेंसिल का जो लीड है उसको आपने ठोकने की कोशिश किया तो वो टूट गया है, तो क्या उसको आप मेटल कहेंगे? नो, आप मेटल नहीं कह सकते हैं। कैन यू होल्ड ए मेटालिक पेन विदाउट, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक पेन, पैन जो होता है बर्तन, जो बर्तन होता है, इज विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। अगर कहीं ना कहीं मेटालिक पैन है जिस पे आप खाना बनाते हैं, उसको, उसका जो हैंडल होगा जो बिना प्लास्टिक का होगा या वुडन हैंडल का होगा, तो उसको अगर पकड़ेंगे तो क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा? एकदम पहुंचेगा। परहैप्स नॉट, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। वाई, क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग नॉट हॉट थिंग्स। आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स का नाम बताना है, प्लास्टिक और वुडन प्लास्टिक हैंडल के प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक का हैंडल होता है या वुडन का हैंडल होता है, वो कहीं ना कहीं आपको गर्माहट से बचाने की कोशिश करता है। इट मीन्स व्हाट, दैट प्लास्टिक और वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयरएज मेटालिक पैन, जो मेटालिक पैन है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। On the basis of this experience, what can we say about the conducting of heat by wooden और प्लास्टिक? कहीं ना कहीं आप इस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, जो आपका वुडन है, वुड है या फिर वुड्स में तो लकड़ी होता है, सॉरी, वुड और प्लास्टिक, ये कैसा है, मेटल से या फिर नॉन मेटल से, ये किस में आएंगे? You must have seen an electrician using this screwdriver. What kind of handle does it have? Why? तो कहीं ना कहीं आपका एक इलेक्ट्रिशियन होता है, वो स्क्रू ड्राइवर को यूज करता है, और स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है। तो प्लास्टिक से जो बना हुआ चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं आपके जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं, किसकी बात किया जा रहा है? मेटल्स का। मेटल्स आर मेलिएबल होते हैं। दूसरा आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड तीसरा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं मेटलॉइड्स में मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ओके। और इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द एक्टिविटी 4.2, एंड इन 4.2 एक्टिविटी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेटल कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, किस तरीके से मेटल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है या पास किया जाता है। ओके, थैंक यू।